Good morning to all. Wait 5 minutes and now all are joined. Hello. Hello.
So now this is your syllabus. This is the EMS. This is the first unit module of the environmental management system industry. How to manage the system of industry. This is the hello. Yes sir, good morning sir. गुड मॉर्निंग. सब कहाँ है? सर पता नहीं क्यों नहीं ज्वाइन किया, हमको नहीं मालूम है. ग्रुप में मैसेज कर दे रहे हैं. ये करो. ओके स्टार्ट करते हैं. ठीक है. यस सर. Okay. You all are known about the syllabus. EMS. You have syllabus. Yes or not? Yes sir. Okay. This is the first unit in the environmental management system industry. This is how to manage the system of industry. This is the behalf of the quality of environment and the standard 14,000 ISO. This is the environment standards, EMS model, policy, planning process, implementation and operation in industry. This unit 1 is the how to start the industry. Which type of work first? The first your work is started from the environment clearance. Without environment clearance, you not start the any type of industrial work, such as the air pollution from the many types of particles is created from the industries, and noise pollution. These always many types of pollution increased by the industry. Okay, so first your work is the EMS. In the first you start the from the environment clearance. ओके पहले हम लोग क्या करना पड़ता है, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेना पड़ता है. विदाउट दिस क्लियरेंस नॉट स्टार्ट द एनी टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल. ओनली वन इज द स्टार्ट बाउंड्री वॉल वर्क. बाउंड्री वर्क स्टार्ट बिफोर द environment clearance. Okay, this first unit is the environment clearance about the policy planning. What is the planning process? A process industry. This is a TIS. Okay. Then second, the environment pollution and control techniques. How to control the pollution. Okay, and what is the techniques? You all are known about the definition of pollution. Actually, said I discussed the previous class, one class. But you 2% not. Okay, so then this is the second unit, environmental pollution and control techniques. Definition of pollution, pollutants. What is the pollutants? तो बताएगा pollutant क्या होता है? सर जिससे pollution होता है. हाँ बताओ, what is the pollutant? Sir, the pollutant किसको बोलेंगे हम लोग? which causes the pollution is called. क्या फिर से again disconnected. The contaminated matter present in environment which causes pollution is called pollutant. Yeah, good. This is the contaminant pollutant, such as example. There are many like SO2, carbon dioxide. What is the air pollution pollutant? So carbon dioxide, sulfur.
Good. Carbon dioxide or sulfur? Chlorofluorocarbon, sulfur dioxide. Okay. Actually, in air pollution, there are two types of matter. Particulate matter. This is the main role of the air pollution for the particulate matter. What is the particulate matter? There are two types of PM10 and TPM2.5. These are two types of particulate matter. Which type of effect on the environment? PM10 and PM2.5. Basically 2.5 causes lung cancer, etc., and Okay, 10 is and slightly bigger than 2.5, which indicates okay. the PM2.5 is a small particle, yeah, PM10. so 2.5 is Yeah, smaller. PM2.5 is the small particle. This is the move in the air without not in the water sprinkling in a atmosphere. Is a settle on the ground. PM10 after the water sprinkling will settle on the ground. PM10 size is the big size. We have a comparison of the PM2.5. The PM2.5 is the move in the air and directly settle in the lungs and heart. Okay, this is the create the cancer. Okay, this is a very dangerous for the human beings. So this is the air how to control this type of pollution. How to control? कंट्रोल कैसे करेंगे एयर पोल्यूशन को? दिस टाइप ऑफ मैटर है. हाउ टू कंट्रोल? By planting vegetation, forestation. Yeah, plantation, vegetation and forestation. Okay, deforestation not forest. जितना हम लोग उसको यूज कर सकते हैं. This is the control techniques and is a water sprinkling. Okay, this is the current today's AQI. What is the AQI? Anyone known? Sir, air quality index. या करंट आज का AQI कितना है? योर प्लेस तुम जहाँ पे हो वहाँ का AQI कितना है आज? सर ये हैजार्डस है सर धनबाद में. कितना है बताओगे तुम ना? सर अराउंड 170-75 था, सुबह भी देखे नहीं है सर. ओके, दिस इज करंटली इन चाईबासा 134 इज करंटली. ओके सर. तो डेंजरस या नॉट डेंजरस? नो डेंजरस सर. नो डेंजरस क्यों? 134 डेंजरस नहीं है. डेंजरस कैसे है? कि रेंज क्या होता है? 50 to 1 to 50 is the good ना? यस सर. And 50 to 100 is the sensitive, and 100 to 150 is the क्या होगा? अनहेल्दी हो जाएगा. क्या हो जाएगा? यस सर, अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स. बताओ. बोलो तुम लोग. This is the very important AQI index. सर AQI जब 0 से 50 रहेगा तो वो गुड रहता है, और 51 से 100 में मॉडरेट, 101 से 150 में अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप, 151 से 200 में अनहेल्दी होता है. आवाज तुम्हारा नहीं आ रहा. तुम्हारा आवाज बहुत कम आ रहा है. सर am I audible sir? हाँ, yeah, now audible. I was talking about the AQI index sir. I was talking 0 to 50 is good, 51 to 100 is moderate, Yeah, good. 101 to 150 is unhealthy for sensitive group, 151 to 200 is unhealthy, 201 to 300 is very unhealthy, and the last one is 300 to 500 is hazardous. This is the very important for the AQI. Yeah, very dangerous. Hazardous is very dangerous. So even Dhanbad is not hazardous. Hazardous है धनबाद में आज? आज नहीं देखे सर, देखना पड़ेगा. रुकिए सर, देखते हैं. During the hazardous AQI, this is the every should avoid all physical activity in the outdoor. Not you outdoor is any physical activity do.
And this type of situation is very dangerous. The visibility is zero. Today's Chaivasa AQI is 135 is unhealthy for sensitive groups. Comes under the orange colors. Sir, 155 in Jamshedpur. 125. कितना है? 155, sir. 155. This 155. Is the, yeah, good. This is the unhealthy. Yes, sir. After the 167 Yes, sir, for unhealthy. Dhanbad, sir. Dhanbad 167 is the unhealthy. Unhealthy, yes, sir. Yeah. This is a red zone. So this AQI is a very important. How to control this type of pollution? Okay. So this is the pollution control types of environment pollution, air, water, and land pollution and control. Actually ये जो secondary मतलब ये एक क्लास का टॉपिक है, एक क्लास में पूरा खत्म हो जाता है. And then third one is the hazardous waste management system. Okay, landfill and incineration, environment problem and solution concept of restoration ecology and reclamation of the degraded land. Okay, and is the fourth one is the environmental impact assessment. The EIA is a very important. EIA related to the project. You any type of start the project such as the industry and multi-source building, the first you start from the environment clearance department. Suppose you take the environment clearance, then all audited report submit to the EIA. EIA then submit to the environment clearance. Actually, all types of documents verified by the environment impact assessment persons. Okay, this is the very important. This is the EIA is the one subject, not in a topic. Actually, you read the in MTech as a you suppose you do the master in the environment engineering, then you teach, then you read the environment impact assessment. EIA is the one subject. So you read the environment management system just like EIA is the subject. Okay, this is the very important. And the environment audit regulation, standard and protocol, setting up EIA audit division in the industry. And last is disaster and their management. How to manage disaster? Disaster कैसे होता है? Disaster introduction, classification, subtype of disaster, industrial disaster and related case studies, precaution of SHE. Okay, in disaster management, role of SHE disaster management. This is your the topic, subject syllabus. इसमें तो कोई हार्ड नहीं है कि है तुम लोग के लिए. बोलो. Nothing. हार्ड ज्यादा नहीं है सर. ज्यादा नहीं, is very easy. Suppose I will start the environment pollution and control. In second minute ना. सर पॉल्यूशन वाला हो गया है. ये हो गया. पॉल्यूशन तो हो गया था, पॉल्यूशन वाला कि नहीं हुआ था? यस सर. वो तो हो गया था सर. हाँ, पॉल्यूशन हो गया था. तो एक्चुअली ये कमिश्नर पढ़ाए थे लोग, इसमें पॉल्यूशन एक पढ़ाए थे, व्हाट इज अ पॉल्यूशन, ये तुम लोग पढ़ाए थे ना. यस सर, ये स्लाइड हो गया था. विजिबल? Yes, sir. यस सर. ये शायद तुम लोग का कुछ स्लाइड लास्ट का बचा हुआ था. एक्चुअली पूरा इन्वायरमेंट में रिलेटेड टू रीड यू द एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइज, सॉइल पोल्यूशन. हम लोग को यही पढ़ना है. So this is the done. What is the pollution? The view of pollution, types of pollution such as air pollution, water pollution, noise pollution, soil. Same चीज हम लोग को पढ़ना है, how to control this type of pollution. Okay, air pollution कैसे होता है, इसका causes क्या है, effect क्या है,
ओके, बस इसका कंट्रोल नहीं है. ओके, एंड देन causes of water pollution. You all are known about the causes of water pollution. Okay, this effect, which type of effect in the water pollution? This source, noise. These all are known. Unpleasant, pleasant sound. This is noise pollution. Causes of noise pollution. This type of activity, physical activity, is the causes of noise pollution. Effect. This type of effect: hearing loss, high blood pressure, stress, sleeping disturbance, color blindness. Okay. And this soil pollution. Soil pollution से actually हम लोग नहीं start किए थे. This is caused by the chemical and pesticide. Okay, such as poison that are used to kill agricultural pests. Actually, currently I used pesticide just like the urea and phosphate. Okay, this type of urea and phosphate with the as a fertilizer. So this type of fertilizer is very dangerous. Okay. Like insect and herbicides that are used to get rid of weeds. Soil pollution results from the unhealthy method such as soil management, harmful irrigation method. The causes of soil pollution, many type of causes you see in the image. For deforestation, fertilizer, chemical, plastic, these are all types of pollutants directly impact on the soil pollution. Okay. Effect of soil pollution, you see just like you see in the image, just this type of pollution increase this type of pollution in the soil. The land cannot use the build houses. ऐसा हो सकता है, possible है. May cannot be farming, groundwater will get affected, death of the animals that inhabit the land. This type of effect, this type of soil pollution causes directly effect on the soil, and this type of see the result. क्लियर है कि नॉट? कुछ डाउट है इसमें? हम लोग कुछ नहीं. यस सर, डाउट है सर. हाँ, पॉल्यूटेड सैंड में हम लोग क्यों नहीं हाउस बिल्ड कर सकते हैं सर? हाँ, पॉल्यूटेंट्स पे. पॉल्यूटेंट्स ये तुम इमेज में देख रहे हो क्या है? इमेज में क्या डेवलप दिख रहा है? फर्स्ट इज द लैंड कैनॉट यूज द बिल्ड हाउसेस. क्या दिख रहा है उसमें तुमको? सर ड्रॉट है. ड्रॉट है सर, दरार पड़ा हुआ है सर. या दिस इज डेवलप द क्रैक ड्यू टू द रीजन ऑफ द केमिकल इफेक्शन. जब केमिकल अटैक होता है ना सॉइल पे, तो जस्ट लाइक दिस टाइप ऑफ क्रैक डेवलप्ड. तो सब क्रैक डेवलप से क्या होता है कि लॉस द स्ट्रेंथ, लॉस द सॉइल स्ट्रेंथ, एंड द आल्सो सेवरल रिमेडियल सर. या firstly you lost the strength of soil, and second is the compaction. Lost the compaction. अगर क्रैक डेवलप होगा उसमें क्या होगा? Enter the water and many types of contaminants enter this the soil. This is the loss the उसको क्या बोलते हैं? This is a compaction loss. Means जब भी तुम अगर कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग करते हो, सपोज यू एज पर डिजाइन फर्स्ट फ्लोर का डेप्थ कितना होना चाहिए? एज पर आईएस कोड, एज पर स्टैंडर्ड, अगर तुम फर्स्ट फ्लोर का घर बनाते हो तो उसका कितना डेप्थ होना चाहिए? सर प्रैक्टिकली देखेंगे सर, फुटिंग का डेप्थ होना चाहिए 4 फीट तक. 4 फीट कितना मीटर? कितना मीटर? 1.2 मीटर सर. दिस इज वेरी 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 डेप्थ ज्यादा हो गया. 4 फीट में तो हम लोग सेकंड थर्ड फ्लोर बना देंगे. सर मतलब जनरली बता रहे हैं सर, प्रैक्टिकली नॉट इन जनरली, प्रैक्टिकली भी 4 फीट रखा जाता है थर्ड फ्लोर तक के लिए. 4 फीट समझ लो कितना है? बना रहे हैं. हाँ, 2.5 से 3 फीट तक सर. 2.5 से 3 फीट. एक्चुअली एज पर स्टैंडर्ड 700 to 900 mm वैरी करता है फॉर द फर्स्ट फ्लोर. हम लोग एज पर डिजाइन इतना ही देते हैं. बट दिस टाइप ऑफ सॉइल, ओके, जब इस टाइप का सॉइल तुम्हारे पास अवेलेबल है
तो यहाँ पे डेप्थ एज पर डिजाइन नहीं होगा। यहाँ पे क्या हम लोग को चेक करना पड़ेगा, सॉइल का डेप्थ कॉम्पैक्शन कितना है। यहाँ पे सॉइल कॉम्पैक्शन तुम्हारा 75 to 80% होगा। ठीक है, इसमें तुम घर बना सकते हो। सर फुटिंग डेप्थ बढ़ा देंगे, बना तो या सकते ही हैं सर। तो फोर्टिंग डेप्थ का बढ़ाओगे तो एज पर डिजाइन जो भी डिजाइन करता है वो तुम्हारा सॉइल कंडीशन देके डिजाइन नहीं करता है, वो एज पर स्टैंडर्ड डिजाइन करता है। बट ऑन द साइड यू आर सिविल इंजीनियर, ऑन द साइड चेंज द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। वाई रीजन क्या है? इट इज द सॉइल कंडीशन, bearing capacity of soil is lost, strength is lost, and the compaction is lost. And three variance is the losses due to the your depth is the increased. That is the depth increased, so your quantity increased, your cost increased. Suppose तुम्हारा as per design, as per your condition, designer is the your all types of activities are done. Is your cost is the 10 crore. One project is the cost 10 crore, but your reason in the site reason increase the cost 10.25 crore. क्यों? Due to the depth of foundation is increased. अगर डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इंक्रीज करेगा तो तुम्हारा सॉइल का कटिंग इंक्रीज हुआ ना। यस सर। बोलो 1 minute। तो बताओ क्या है रीजन, ये बता सकते हो? नहीं कोई बताएगा? क्या सर? तुम लोग तो सब बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन पढ़ लिए हो ना? सर क्या पूछ रहे हैं?
क्या पूछे तुमको, क्या बता रहे थे बताओ, क्वेश्चन क्या किए? सॉइल पोल्यूशन, एक्चुअली डेप्थ के बारे में बात किए थे, तो रीजन क्या है इंक्रीज कॉस्ट करता है, क्या उसको इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा कॉस्ट? यस सर। तो उसमें क्या करोगे तुम, तो यू आर सिविल इंजीनियर, जब डिजाइन तुम्हारा कंप्लीट हो गया वहां पर तुम्हारा पैसा 25 लाख बढ़ गया तो क्या करोगे तुम अपना घर से जमा करोगे? बोलो, यू आर ए सिविल इंजीनियर, तो तुमको प्रोजेक्ट लेना है, ठीक है, यू टेक द प्रोजेक्ट, तुम यू गिव द प्रपोजल फ्रॉम द कंपनी साइड, बट व्हाट इज द योर प्रोजेक्ट कॉस्ट या 10 करोड़, बट तुम्हारा ऑन द साइट इंक्रीज कर गया 10.25 करोड़, तो 25 लाख का तो अपना पैकेट से दोगे कि सैलरी कटवाओगे, क्या करोगे उसके लिए? Sir, I will send the documents again for reassessment. No, no, They will no. provide- This is not the reason. जब डिजाइन हो गया, सारा कुछ हो गया, प्रोजेक्ट कॉस्ट सब कुछ हो गया, जब तुम साइट पे काम करो उसका फिर अगेन यू रीसेट द डॉक्यूमेंट्स, देन यू टेक द अप्रूवल. No, this is not possible. This is wrong way. Sir, without reconnaissance, how can they prepare estimate? Yeah, without recognition होता है सर. जब तुम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो उनको तो तो तुम देखना होगा ना सर सर। अगर No, 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 no. Suppose you appoint the civil engineer after the सब जो project started. You appoint the civil engineer, तो क्या करोगे? अगर तू प्रोजेक्ट तुम्हारे हैंड में आ गया, वो कॉस्ट वहाँ प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है. सर फर्स्टली जाके देखेंगे सर साइट में वो है कैसा। नो नो नो, तो साइट में तुम देख के क्या करो, वहाँ पर टेस्ट तो नहीं करने लगोगे जाके ना. वो कब पता चलता है जब तुम साइट जाकर देख लिए, ठीक है, तुमको अब साइट दिखा दी, क्या तुम उसे देख के बता दोगे कि हाँ इसमें कॉम्पैक्शन है कि फिलिंग सॉइल है ओरिजिनल सॉइल है, बता दोगे देख के? सर डिटेल्ड एस्टिमेशन से पहले तो होता ही ऐसा ना, छोटा मोटा जो भी होना चाहिए उसमें टेस्ट। टेस्ट नहीं होता है ना, छोटा मोटा टेस्ट होता तो बहुत अच्छा ही रहता. क्या किया जाता है उसका, क्या प्रोसेस क्या है एक्चुअली, तुम लोग अभी नहीं हो, समझ गया। एक्चुअली तुम लोग अभी नहीं हो. एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट है 10% या सॉरी 5 to 10% का एक्स्ट्रा लेकर चलता है लोग, ठीक है. 5 to 10% की कॉस्ट इन इंक्रीज या डिक्रीज, बोथ. इंक्रीज किया था कोई तो नहीं उसमें, तो लास्टली जब प्रोजेक्ट जो कॉस्ट होता है जब डिक्लेयर होता है कि 10 करोड़, उसमें 5 to 10% का एक वेरिएशन रख के उसमें ऐड करे जाए अमाउंट की ये आपके लिए अमाउंट है. ओके, ओके not change the any type design Go ahead, on the हाँ या on the site any types of structural work. सिविल में कोई भी टाइप का वर्क होगा, अगर चेंज होता है ऑन द साइट तो पॉसिबल ये चेंज होगा ही, ऐसा है ही नहीं कि चेंज नहीं होगा. कोई भी काम करो तुम सिविल इंजीनियरिंग का कोई भी वर्क करो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो चेंज नहीं होगा. कभी सिविल का काम 0-0 मीन समझते हो, वर्क सिविल का 0-0 वर्क. तो सर उसके लिए प्रोविजन है ना सर, रिवाइज्ड एस्टिमेशन है, सप्लीमेंट्री एस्टिमेशन है। अच्छा, तुम कौन सा एस्टिमेशन करते हो, यूज करोगे सप्लीमेंट्री या रिवाइज्ड? व्हाट टाइप्स ऑफ कॉस्ट बढ़ जाएगा उसके लिए बोल रहे हैं। कॉस्ट बढ़ जाता है, एक्चुअली यूज होता है डिटेल एस्टिमेशन. ऑलवेज यूज द डिटेल एस्टिमेशन. डिटेल एस्टिमेशन ही एक ऐसा एस्टिमेशन है कि जो तुम अपना बच सकते हो, सेफ साइड. हाँ सर, along with the detailed estimation और भी ऑप्शंस है ना सर, जैसे रिवाइज्ड एस्टिमेशन हो सकता है या फिर सप्लीमेंट्री हो सकता है यदि कॉस्ट नहीं होता है, ये सब एस्टिमेशन सिर्फ पढ़ने के लिए है, समझे? साइट पे नहीं होता है रिवाइज्ड और सप्लीमेंट्री. तो रिवाइज एस्टिमेशन नहीं होता है एक्चुअली. बताओ तुम कितने बार एस्टिमेशन करोगे एक प्रोजेक्ट का? तुम्हारे पास इतना टाइम है? नाउ आई अंडरस्टैंड सर। हाँ सर, तुम्हारे पास इतना टाइम है? मान लो तुमको प्रोजेक्ट मिला है कि तुमको 6 मंथ में कंप्लीट करना है, ठीक है, तुम एस्टिमेशन ही करते रहो. एस्टिमेशन इतना इजी नहीं है ना कि तुम उतना बड़ा प्रोजेक्ट का फिर से एस्टिमेशन करोगे, रिवाइज एस्टिमेशन करोगे. पॉसिबिलिटीज है? नो.
तो तुम साइट पे काम करने जाओगे तब तुमको पता चलेगा कि व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ द साइट, कैसे हैंडल करना पड़ता है। 1000 लेबर 2000 लेबर को तुमको अकेले हैंडल करना पड़ेगा। Your site, suppose your site is multi-stories building is a 21-25 floor. This type of floor work the 500 plus labors work for the site. तो how to manage? तुमको एक ही साइट अकेले देखना है तो क्या देख पाओगे? तुम साइट देखोगे कि तुम एस्टिमेशन करोगे बैठ के? This is my first question. सुपरवाइजर देखेगा ना सर? सुपरवाइजर को जो तुम बताओगे तभी ना वो देखेगा। सुपरवाइजर क्या तुम्हारा सब काम जानता है? वो सुपरवाइजर विल सी ओनली हैंडल द दे सी द वर्क। हाँ, कहाँ पे लेबर उसको मैनेज करना है। तो क्या अकेले सुपरवाइजर तुम्हारा एक सुपरवाइजर देख लेगा? तुमको 10 सुपरवाइजर नहीं देगा ना। डायरेक्शन देगा ना सर? कौन? इंजीनियर। यस सर। साइट पे जाओगे तो पता चल जाएगा कि डायरेक्शन देगा कि क्या देगा। तुम क्या ऑफिस, तुम्हारे लिए ऑफिस नहीं रहता है साइट पे? अब गए हो प्रोजेक्ट पे साइट पे? नॉट द ऑफिस। तुमको धूप या पानी हो उसमें खाद उसमें तुमको रहना पड़ता है। तो वहां पे एक बंकर्स बना रहता है, जब पानी पड़े तो वहां तक बैठ सकते हो, बट इज नॉट द प्रॉपर ऑफिस इन द साइट। ऑफिस से एक अलग ऑफिस रूम ऑफिस रहता है। बट सपोज यू स्टार्ट द 1000 MQ कास्टिंग, यू तुम्हारी एबिलिटी वहां पे रहना जरूरी है। दिस नीड द अवेलेबिलिटी ऑफ योर साइट। 1000 MQ का कास्टिंग हो रहा है, तुम वहां नहीं रहोगे तो कास्ट हो जाएगा? बताओ। नो सर। वाई? बिकॉज सर वहाँ पे ये बोला जाता है कि जब उतना से ज्यादा का अगर कास्टिंग हो तो इंजीनियर को रहना मस्ट है। इंजीनियर का एब्सेंस पे आप नहीं कर सकते हो अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स। इंजीनियर्स, क्योंकि लेबर्स क्या करते हैं, रीजन क्या है उसका नहीं रहने पे, लेबर लोग क्या करता है कि पानी पूरा मिला देता है। क्यों? क्योंकि उसको अच्छे से वाइब्रेटर यूज ना करना पड़े, तो अपने आप कंक्रीट बह जाएगा, मतलब फ्लो हो जाएगा, अपने आप सेटल हो जाएगा। तो उससे क्या होगा? मेनी टाइप ऑफ डिफेक्ट्स, सेग्रीगेशन, ब्लीडिंग, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स इंक्रीज होने लगे। हाँ, क्या होगा? सेग्रीगेशन, ब्लीडिंग ये सब होने लगेगा। Yeah, segregation, bleeding, honeycomb, this type of see the result after the remove the starting material. So your ability is the very important on the site. You maintain the slump, okay? You maintain the strength. You extra water mix in the concrete, then you lost the strength. So civil engineering is the very important for the engineer, civil engineer. तुम्हारे भैया एक पत्ता नहीं हिलेगा अगर तुम बोलोगे ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा। ये तुम्हारे ऊपर ही सारा वो स्ट्रक्चर खड़ा है। अगर तुम थोड़ा सा गलती करोगे तो स्ट्रक्चर बाद में गिरने का तुम्हारा ही ज्यादा वो रहेगा कि तुम्हारे कारण नहीं गिर गया ड्यू टू द योर सिविल इंजीनियर प्रॉब्लम्स। अगर वो काम करा देता है तो उसको डिमोलिश करने का भी ये पावर रहता है सर इंजीनियर के पास कि मेरे एब्सेंस पे आप काम करा रहे हैं। हाँ, अगर गलत हो गया काम तो डिमोलिश करने का पावर तो रहेगा, उसका कॉस्ट कौन फील करेगा? सर वो कॉन्ट्रैक्टर फील करेगा, क्योंकि करेगा। सपोज यू आर कॉन्ट्रैक्ट, नॉट यू आर क्लाइंट इंजीनियर, यू आर कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर। अब क्या करोगे तुम बताओ? यू आर नॉट क्लाइंट इंजीनियर, यू आर कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर। कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर अगर हम रहेंगे तो सर जो उसका नॉर्म से उस टाइम पे हम वहीं पे प्रेजेंट रहेंगे कंक्रीटिंग करने। सपोज तुम्हारा गलती करने के बाद प्रेजेंट रहोगे। नहीं सर, पहले ही मैं रहूंगा क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्टर का हूं, सर मुझे पता होना चाहिए ये। तो कब जब तुम काम ही गलत कर दोगे तो ऐसे कैसे होगा? बोलो। गलत काम कैसे होगा सर? कॉन्ट्रैक्टर करेगा तो कॉन्ट्रैक्टर अपनी जिम्मेदारी निभाएगा ना सर उस पे। और नहीं निभाएगा तो फिर अच्छा ऐसा बात है, तब तो अच्छी बात है, थोड़ा सोच तो बहुत अच्छा है।
साइट पे एक गलती के कारण तुमको कितना अपना सैलरी तुमको देना पड़ जाएगा। इसलिए गलती के लिए तो बिल्कुल ही जगह नहीं है साइट पे। थोड़ा मोड़ा है कि चलेगा, बट वैसा नहीं। ठीक है, चलो गुड। तो तुम लोग को अच्छे से काम करना है, इसे सीखना है, लर्न। तुम लोग को सिविल इंजीनियरिंग से जो भी तुम लोग का ये सब प्रॉब्लम है, हमको उससे क्वेश्चन कर सकते हो। तुम लोग को हर चीज का रिप्लाई कर सकते हैं हम। ठीक है, जो भी टेक्निकल रिलेटेड हो, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, स्ट्रक्चरल टाइप का जो भी है तुम्हारा वर्क करना है। चलिए, आई ऑलरेडी हम वर्क इन 5 years इन इंडस्ट्री। सर हम लोग भी सर प्रैक्टिकल करते तो कुछ ज्यादा ही समझ में आता। हाँ, तो करना है ना, करते तो नहीं, करना है, सीखना है। कहीं जाके तो कॉलेज विजिट कहीं नहीं होगा सर? तो तुम लोग को करना है ना, कॉलेज विजिट करना है। तो कॉलेज तो उसके लिए शायद वो तुम लोग खुद से अगर सीखना है तो कुछ तो अपने से तुम लोग कर सकते हो अरेंज ना। तुम लोग ग्रुप का अपना बना के अरेंज कर सकते हो। तुम लोग को हम लोग एक चीज परमिशन दिला सकते हैं कहीं से बात करके कि हाँ यहाँ पे जाके देख सकते हैं। ये तो तुम लोग खुद करना पड़ता है बच्चा लोग को यह सीखना है ना। बोलो, क्या सही है गलत? हम लोग तो खुद गए थे जब बीटेक कर रहे थे, तो हम लोग तो खुद गए थे सीखने के लिए। क्योंकि हम लोग कॉलेज को क्या मतलब तुम सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो? बात सही गलत है? सही है सर। हम लोग कहाँ पढ़ाना, तो पढ़ा रहे हैं, और तुम्हारा काम है कि तुमको कैसे करना सीखना है। अगर तुमको वेट करना है, तुम लोग इतना ग्रुप में हो तो कर सकते हो अरेंज मैनेज। नहीं, कोई बोल नहीं रहा। और कोई कॉलेज खुलने का वेट कर रहा है सर। बोलो। यस सर, मैनेज तो करना पड़ेगा सर। तुम लोग क्या पढ़े थे इसमें? बीएमसी पढ़े थे ना तुम? मटेरियल के बारे में सब पढ़ लिए थे ना? हेलो, कोई कुछ बोल नहीं रहे हो तुम? यस सर। क्या पढ़े थे तुम लोग? बीएमसी में सब पढ़े हो तुम लोग, पता है? यस सर, पढ़े। तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा, तुम जो बोल रहे हो। क्या है नाम तुम्हारा? यस सर, पढ़े हैं। आवाज नहीं जा रहा है सर? रुपेश कुमार हो जाए, तुम थोड़ा नजदीक करके बोलो। बिल्कुल नजदीक है सर, अब तो स्पीकर मुंह में आ जाएगा। वो कभी कभी तुम्हारा आवाज बिल्कुल ही नहीं आ रहा। तो थोड़ा सा इस पे तुम लोग फोकस करो, सीखना है, लर्न करना है। ठीक है, तो खुद से भी अरेंज किया जाता है, ऐसा नहीं डिपेंड नहीं रहना चाहिए कॉलेज पे। तुमको सीखना है, हमारा बीटेक लाइफ है, तुमको खुद से सीखना है। ठीक है, और क्या हम बोल सकते हैं इससे ज्यादा? और जो भी प्रैक्टिकल रिलेटेड कुछ डाउट हो, पूछना होगा, एनी टाइम आई एम अवेलेबल। तुम लोग कभी कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है, रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन वर्क, रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन, किसी टाइप का कुछ भी पूछना हो, ड्राइंग के बारे में पूछना हो, तो तुम लोग को हम ऑलवेज अवेलेबल है। किसको किसको ड्राइंग पढ़ने आता है? पता है किसी को? यस सर। यस सर। ड्राइंग टेप टेप पढ़ने का, तुमको टेप पढ़ने हाँ सर, आता है। आता है? 1 मीटर में कितना फीट होता है? 1 मीटर में 3 कोई गूगल सर्च करके नहीं बताएगा? 3.28 फीट सर। या 3.28 फीट सर। ओके। 1 इंच में कितना सेंटीमीटर? 2.54 सेंटीमीटर सर। यस सर, 2.54। 1 इंच में कितना mm? 25.40 mm सर। 25.40 mm। तो 25 ही मानो उसको, 25 mm। ओके,
गुड, ये सब तुम लोगों को पता रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। सर नहीं और आया किसी से कोई डाउट है? लाएंगे नहीं ना सर। क्लास नेक्स्ट क्लास में लेंगे, तुम लोग आज करने हो 2 क्लास था, लेकिन क्लास एक लेंगे नेक्स्ट में, ठीक है। सर ये सब नोट्स का पीडीएफ सर। हाँ दे देंगे, नोट्स शेयर कर देंगे, तुम लोग को नोट्स दे देंगे, नोट्स का चिंता नहीं करो। ओके सर। कोई डाउट हो पूछना, क्वेश्चन तुम लोग करना, ठीक है। ऑफ रहेगा सर।